Assalamualaikum grade 3. Welcome to your English class. I hope that all of you are fine. Kids, today we are going to start chapter 6 of Oliver Twist. Okay? So I'm going to tell you the chapter in a short story. So you have to listen to it very carefully. Okay? After listening to the summary or the short story of this chapter, you have to read the chapter on your own. So be very careful. And okay, I'm going to start. Chapter 6, Nancy and Oliver. Sykes and Nancy brought Oliver to Fagin's house and the boys took the £5 from him. Oliver requested them to return the books and the money as these belonged to Mr. Brownlow, but they all laughed at him. Fagin hit Oliver with a stick, but Nancy ran forward to save him as she was a true friend of Oliver. Fagin, Sykes, and the boys didn't let Oliver run, and Fagin continued to give his lessons to Oliver in order to make him a thief. On the other hand, Mr. Brownlow waited for Oliver for many weeks and was disappointed. At last, he put a notice in the newspapers which said that he would give a reward to anyone who knew anything about Oliver. Mr. Bumble saw the notice and hurried to Pentonville hoping to get the reward. Mrs. Bedwin led him to Mr. Brownlow's study where Mr. Grimwig was also sitting. Mr. Bumble told them the story of Oliver's life, a large part of which was not true. After hearing the story, Mr. Brownlow and Mrs. Bedwin felt sad. Oliver was also locked up in the thief's house. Fagin met a new person named Monks, who was a wicked person. He wanted a boy whom he could put into trouble. Fagin knew it was Oliver, but he wanted to use Oliver first. Sykes planned to rob a big house at Churchday near London, and Fagin wanted Oliver to help him in this. When Fagin went at Bill Sykes' house, he came to know that the servants of the big building are not willing to help them in robbery even if we pay them £500. Suddenly, Sykes got a plan which could be accomplished if Fagin gives them 50 more pounds. Fagin agreed. Sykes with Toby Crackit saw some houses over the garden whose one part was unlocked. They planned to rob them and needed a boy for help. Fagin suggested that Oliver, as he is small and thin and was perfect for the job. During the discussion, Sykes fell on the ground and went asleep. Before leaving, Fagin hit him hard with his boot because he hated him. Okay, so kids, now I'm going to tell it in Urdu as well. किड्स हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं. इसका नेम है ऑलिवर एंड नैन्सी. ठीक है, अब इसमें आपको याद होगा कि लास्ट चैप्टर 5 के एंड में हमने क्या पढ़ा था कि नैन्सी जो है ऑलिवर को देख लेती है बुक शॉप जाते हुए और नैन्सी और बिल साइक्स उसको पकड़ लेते हैं. अब क्या, और फैगिन के घर ले जाते हैं. अब चैप्टर 6 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि साइक्स और नैन्सी वो जो है ऑलिवर को फैगिन के घर ले आते हैं. ठीक है, और वो वहाँ से उसकी सब चीज़ें ले लेते हैं. £5 जो मिस्टर ब्राउनलो ने उसको दिए थे शॉपकीपर को देने के लिए, और उसकी बुक्स तो साइक्स पहले ही ले चुका होता है. ऑलिवर उनसे रिक्वेस्ट भी करता है कि मुझे ये पैसे और बुक्स वापस करें क्योंकि ये मिस्टर ब्राउनलो के हैं और मुझे ये जाके बुक्स शॉपकीपर को देने हैं, नहीं तो ये मिस्टर ब्राउनलो मुझे थीफ यानी चोर समझेंगे. ये सब सुन के फैगिन और बाकी सब हंसने लग जाते हैं. ऑलिवर वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है लेकिन फैगिन उसको पकड़ लेता है और उसको एक स्टिक से मारता है. जब वो उसको दूसरी दफ़ा मारने लगता है तो नैन्सी बीच में आ जाती है उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो ऑलिवर की एक ट्रू फ्रेंड होती है. वो ऑलिवर के लिए उसके दिल में काइंड फीलिंग्स होती हैं. ठीक है, वो बाकियों की तरह इतनी बुरी नहीं होती. फैगिन बिल साइक्स जो है वो नैन्सी को मारता है कि वो क्यों ऑलिवर को बचा रही है. अब क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक ऑलिवर जो है इसी तरह उन फैगिन के घर में उसको लॉक करके रखते हैं. ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है मिस्टर ब्राउनलो काफ़ी वीक्स तक, काफ़ी हफ्तों तक ऑलिवर ट्विस्ट का वेट करते हैं. जब वो नहीं आता तो वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं. ठीक है, फिर आखिर में वो अखबारों में नोटिस दे देते हैं, न्यूज़पेपर्स में. क्या नोटिस में ये लिखा होता है कि जो भी ऑलिवर के बारे में कुछ भी जानता है मैं उसको रिवॉर्ड दूंगा, उसको इनाम दूंगा. तो मिस्टर बमल जैसे ही उनको ये ख़बर मिलती है न्यूज़पेपर से, वो ये न्यूज़ पढ़ते हैं तो वो फ़ौरन पेंटन विलेज जाते हैं जहाँ पे मिस्टर ब्राउनलो रहते हैं और वहाँ
ये इसलिए क्यों जाते हैं ताकि वो ओलिवर के बारे में बताएं और उनको रिवॉर्ड मिले। मिसेस बेडविन जो कि मिस्टर ब्राउनलो के वहाँ पे केयर टेकर थी ओलिवर की, वो मिस्टर ब्राउनलो की स्टडी रूम में ले जाती है मिस्टर बम्बल को। वहाँ पे मिस्टर ग्रिमविक और मिस्टर ब्राउनलो दोनों बैठे हुए होते हैं। मिस्टर बम्बल वहाँ पे जाकर उन ओलिवर की लाइफ की सारी स्टोरी बता देते हैं, और उस स्टोरी का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा वो झूठ बताते हैं। मतलब कि वो स्टोरी में जो ज़्यादा बातें होती हैं वो गलत बताते हैं, जिसमें यानी ओलिवर को बुरा शो कराते हैं कि वो बुरा था, ठीक है, झूठ बोलते हैं वो। ये सब सुनने के बाद मिस्टर ब्राउनलो और मिसेस बेडविन बहुत मतलब उदास होते हैं। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि ओलिवर तो ऐसा निकला। वो तो समझते थे कि ओलिवर बहुत अच्छा है, वो ओलिवर से प्यार भी करने लग गए थे। मिस्टर ब्राउनलो बहुत गुस्से होते हैं। वो कहते हैं मैं आइंदा के बाद ओलिवर का इस घर में नाम भी ना सुनूं, ठीक है। फिर ओलिवर अपनी क्लासेस ओलिवर को देता रहता है। एक दफ़ा क्या होता है, एक नया आदमी आता है, उसका नाम है मॉन्क्स, ठीक है। वो बहुत बुरा इंसान होता है और उसको एक ऐसा लड़का चाहिए होता है जिसको वो यूज़ कर सके अपने बुरे कामों के लिए और उसको मुसीबत में डाल सके। फैगिन को पता था कि ये ओलिवर की बात कर रहा है, इसको ओलिवर चाहिए, लेकिन उस फैगिन को ओलिवर से अभी खुद अपना काम लेना था। फैगिन को भी ओलिवर से चोरियां करवानी थी और भी काम करवाने थे, इसलिए वो चाहता है कि पहले वो फैगिन ओलिवर को खुद यूज़ करे, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है, बिल साइक्स जो है वो एक बहुत बड़ा लंदन के करीब एक बहुत बड़ा घर है, उसको चर्चडे कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में बिल साइक्स जो है वो उसको पता लगता है कि चर्चडे में जो सर्वेंट्स हैं, जो मुलाजिम हैं, वो इन लोगों का साथ देने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो वहाँ पे 20 ईयर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं और जिसकी वो बिल्डिंग होती है जिस औरत की, वो उससे बहुत लॉयल होते हैं, तो वो ये काम करने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। अच्छा। और बिल साइक्स ये बात फैगिन को बताता है। वो कहता है अगर हम उनको 500 पाउंड्स दें वो तब भी हमारे साथ ये चोरी का काम करने के लिए नहीं मान रहे। फिर साइक्स को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम ये काम कर सकते हैं फैगिन, अगर तुम 50 पाउंड्स हमें और दे दो। तो फैगिन मान जाता है। फिर वो कहता है कि साइक्स जो है ना, वो कहता है कि मैंने टॉबी क्रैकेट के साथ कुछ घर देखे हैं गार्डन की दूसरी तरफ, ठीक है, जिनमें से एक उनका हिस्सा जो है वो अनलॉक है, ठीक है, लॉक नहीं हुआ, बाकी सब पार्ट्स लॉक है लेकिन एक पार्ट अनलॉक्ड है, ठीक है। वो प्लान बनाते हैं कि वो उस घर को जो है रॉब करेंगे, यानी वहाँ पे चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, ठीक है। फैगिन जो है ये मशवरा देता है बिल साइक्स को कि ओलिवर को अपने साथ ले जाएं हेल्प के लिए, क्योंकि बिल साइक्स को एक लड़का चाहिए होता है हेल्प के लिए। और फैगिन क्यों सजेस्ट करता है, क्योंकि ओलिवर छोटा भी होता है, पतला सा बिल्कुल होता है, वो आराम से ये काम अंदर घुस के कर सकते हैं, ठीक है। अब यही बातें अभी वो प्लान कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो रात का टाइम होता है, तो बात करते करते बिल साइक्स जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है और सो जाता है। फैगिन भी फिर वहाँ से जाने लगता है अपने घर के लिए, लेकिन जाने से पहले वो बिल साइक्स को अपने बूट से बहुत ज़ोर से हिट करता है, क्योंकि फैगिन जो है असल में बिल साइक्स से नफ़रत करता होता है, लेकिन वो जब बिल साइक्स के सामने वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो उससे डरता भी है। ओके, so kids, I hope you understand this chapter 6, Nancy and Oliver. You have to read this chapter on your own, okay, and you have to underline all the difficult words and then you have to find their meanings from dictionary. So take care kids. Allah Hafiz.